one thing that I wanted to share with you is with respect to the fact that how our group is. Now, if you see our group, we have around I think 70 odd people in the group, right? And of that, around three of them are admins, so the team is three people. So 67 people who are there, uh, and I mean usually you will see around 30 students logging in. And why am I telling you this is because see, this exam is about more about consistency. Motivation everyone gets. You remember, I mean, if you see Pratibha's talk as well, I mean everyone is motivated. आप दो चार यूट्यूब के रील्स देखो, इंस्टाग्राम के रील्स देखो, आईएएस ऑफिसर्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो उस वक्त तो एकदम से जोश आ जाता है. मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है इस फील्ड में. बट द रियल डील इज़, are you consistent enough? Do you have the grit to survive that, to survive that grind for say 2 years? And that's what tough is. We don't want very highs, ups and downs. What we want is consistency. That consistency to be there of 9 to 10 hours every day for the next 2 odd years. And if that's that, we have given our part. And then comes a little bit of luck, but that luck can be countered with time. So it's the consistency, and this program is about consistency only. uh, I'm going to start another program. I wouldn't urge any of you to join that program. It's basically on physical training, but right now you should take care of your academic training. That portion, I'll open up for you, I mean, in terms of the diet management. But that's a separate program that we are going to have. But essentially, I mean, again, the idea there also is to how to remain consistent over a period of time and see the transformation that happens. Next month onwards, this entire batch again will become a 3 month program rather than a 1 month program, because we want to see that how many students are consistent over a period of 3 months, and then we will make an assessment that where we have reached in the last 3 months. And once you are done with the month, I also want you to reflect back on the month gone by and see how much have you covered. So that's reflection is always going to be very important as well. And this time we had this session with Pratibha on Sunday. I'm planning to have a session with one of the IPS officers of either of Jharkhand cadre, or there's one from Agbod cadre who's now got into IS, depending on the time that they have. I'll get someone. One has, I think, philosophy as an optional, the other has anthropology as an optional. There's another person that I have in mind. So let's see who I can bring in, and post that session, we'll have that session that I was so eager to talk about. I also want that different session that I wanted to have with the newcomers. So with this, let us start with our session. So the template of, you already know the template. A couple of people every day, a couple of people are entering. But from the July cohort folks, what we will do is we will not allow anyone new to enter in between. If you're there in the beginning, you're there in the beginning. If you're not there, I mean, you will be there with us for the next 3 months. So I mean, this coming in between will, I mean, it stops the flow of the session that I really want to take. So what you have to do is, we'll start off with meditation for 10 minutes. We'll focus on our breath, with music or without music, it's up to you. And the other thing is, you need to have a diary with you for journaling. So we'll start off with our meditation. Keep a good track of your breath, and if you have any issues, then you can always count your breaths. That maybe that at times helps me as well. And even if you're not able to do it consistently, try to bring it back. The idea is to bring your attention back to your breath. Till the point that you're able to do that, that's good. Chalo. Let's start our meditation, folks. Let's start for meditate for 10 minutes. That today we are marking 1 year of completion of these classes that we have started. Actually, I think a couple of you might have seen this, that we started these classes exactly 1 year ago,
at Gargi at 4 a.m. in the morning. Now, 21st, I remember it was yoga day, and I kept it at yoga day last year. So it's been 1 year. We've had a huge time gap in between when we did not used to take classes. But let's be consistent now. I can't ask you to be consistent if I'm not consistent. So let's be consistent, and let's start our the next part of our session. So in the next part we'll do Indian Express, folks. Let me just change. Yeah. So we'll be doing Indian Express now. Indian Express and Hindu. There's one article of Hindu that I wish to cover tomorrow because it's an important article. I need to do a little bit of research for that for you. Now, Indian Express. In Indian Express of 20th. Although this is not required for your UPSC, but you can read Raw's new chief Sinha, Ravi Sinha, who's been appointed. But there's another thing that we want to discuss. Khalistan terror outfit chief Najir, one of the most important, most wanted, killed in Canada. Now, and again, this is not. I mean, with respect to just your examination, but what we are seeing these days is that our external agency, intelligence agency, which is RAW, is now starting to morph into something like Mossad does. Mossad is basically the external intelligence agency. So just like CIA is something like that, where we have these are not, this is not that is for Israel, CIA is for US. So this is not some people randomly getting killed. It's a systematic. If you read the article of Pakistan to UK to Canada, 3 among the wanted are dead. So we are basically eliminating people. Our external agency is what my hunch is basically eliminating people who have been threat to in peace and tranquility. It's a good thing as a citizen, we say that, but at the same point of time, does it comply with the rule of law? That's another thing. So this is more of an interview kind of a thing, but still wanted to discuss. The other issue is heat wave. In Balia district there have been 68 and in Deoria district there have been 82 deaths reported. Now there was this incident in Maharashtra as well. If you remember, 3 months ago there were a lot of people who died in Maharashtra, and there was this Ahmedabad heat plan that we had discussed. So if you don't know about it, read about the Ahmedabad heat plan, that how do you manage a heat wave and what is the definition of a heat wave. It's very different from all other things. So and heat wave also depends on the kind of moisture that is there, and also you need temperatures. You need temperature gauges at the local level to see what is the temperature change that is happening. So एक heat wave जो होता है वो होता है जब 40 डिग्री से ऊपर ज़्यादा temperature चला जाना शुरू होता है. It's 2 or 3 degrees more than the normal, and in any case if the temperature is more than 45 degrees for 2-3 days, then it's declared as heat wave. So read the definition of heat wave and severe heat waves. हिल स्टेशंस के अंदर अलग डेफिनेशन है, प्लेन्स के अंदर अलग डेफिनेशन है. यू शुड नो दिस डेफिनेशन फोक्स. ठीक है. इन अ कपल ऑफ डेज यू माइट सी दिस आर्टिकल देयर, बट आई वांट यू टू डू दैट रिसर्च. हीट वेव्स का हाउ डज इंडिया डिफाइन, एंड हीट वेव के लिए काउंटरिंग के लिए व्हाट इज़ दैट अहमदाबाद प्लान दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट. सो हैव दैट. और अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ होता तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड करना होता ये चीज़. दिस इज़ अ डिज़ास्टर, a natural disaster which is accentuated because we have not been able to intervene well. So that is something. And then how do you counter a heat wave victim, that is also I want you to read about. Okay, so these are a few things. Then the other is Indigo makes an aviation history. So what we are seeing is the aviation sector is doing really well. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विल बी गिविंग एग्जांपल्स, अगर कहीं पर एग्जांपल आपको देना पड़े कि कैसे मार्केट के अंदर यू हैव दिस मोनोपोली दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, तो वहाँ पर इंडिगो का एक वो है कि इंडिगो कंट्रोल 60% ऑफ द एविएशन मार्केट. बट what this shows is this is a point that you can give in any particular answer, where you can say that how Indian economy is doing well. People are investing, corporates are investing in Indian market, seeing 2035.
So these deliveries that the planes are that they're going to get, this 500 planes that they're going to get, you are going to get them between 2030 and 2035. Similarly, you see Air India, they had placed, इससे पहले, this is the highest order, इससे पहले Air India had placed 470 planes with Boeing. So what we are trying to say is that the Indian economy is doing well, and we I mean it is expected to do even well in the long term, and these are some indicators which show that how well the Indian economy is expected to do, especially tier 2 tier 3 cities जहाँ पर we are making more airports. Related to this is one scheme that you can search if you have time, which is called as Udaan. ठीक है, रीड अबाउट दिस स्कीम कॉल्ड उड़ान इफ़ यू हैव टाइम. अगर नहीं है तो संडे को पढ़ना है इस स्कीम के बारे में. देन next, security forces look at the buffer zones. We have already discussed what the security forces are doing. Security forces are doing basically, Manipur के केस में I asked you to read the geography of it. मणिपुर के केस में you have the hill terrains जो कुकी dominated है, the valley region, the Imphal valley region which is dominated by Meiteis, एंड इनके बीच में जो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं. सो व्हाट दी सिक्योरिटी फोर्सेस आर डूइंग इज क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन दीज टू communities so that no one can come from one side to other side, but the problem is not the entire area is being covered. So there are friction points where there is no patrolling, and यहाँ पर there is still violence. Apart from that, one of the major issues is I mean from 3rd of May what has happened is the outfits have stolen a lot of state armory. तो स्टेट आर्मरी से वो ले जाके दे हैव सोफिस्टिकेटेड गन्स, एंड दे आल्सो हैव आरपीजीज, एंड दे आल्सो हैव दिस ग्रेनेड्स. So plus when these people come, they come in form of mobs. So the security forces are facing a difficult time, not only in terms of how well prepared they are also prepared to die for their cause. So that has become a major challenge, and I had asked you to read about Article 355 in this respect. Please, if you have not read it, please read about it, that when can the president rule can be imposed if there is complete breakdown of law and order. ठीक है, तो 355 एंड 356 उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, और उसका इम्प्लीकेशन ऑन गवर्नेंस क्या होता है, लेजिस्लेचर पे क्या इम्प्लीकेशन होता है, एग्जीक्यूटिव पे क्या होता है, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू रीड. ठीक है, ये लक्ष्मीकांत के चैप्टर में दे रखा है, प्रेसिडेंट के इमरजेंसी के चैप्टर में दे रखा होगा. ठीक है ना. Jammu sees terror push, Hilkaka heroes tip for government. very important news folks, बहुत ही ज़्यादा important news. I'm not sure कि बहुत लोग इसको important मानेंगे, but it's a very important news because I've been reading about this and I've heard about this from a lot of senior bureaucrats coming from J&K. Now what had happened was, and I don't remember मुझे किसने या कहीं I read this information earlier sometime back, I think 6-7 months back, but I can easily I can recall this. What had happened was that between April and May 2003 Indian Army had set this operation Sarp Vinash. Now what had happened is, ये हिल काका एक हैमलेट है in Jammu and Kashmir. यहाँ पर militants had set their base, and they were not only troubling the Indian security establishment, they were also troubling the क्या कहते हैं the locals. तो locals के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं they were enforcing that run a parallel government basically. अब उसमें क्या हुआ, with the help of the local people, the intelligence was given by the local people, and it was the local people who joined arms with the Indian Army and the Indian security establishment, and then they started defeating these militants. So what this particular person is saying, who was at the forefront of this particular exercise, ताहिर फजल हुसैन. तो इनका वो आपको एग्जाम्पल लिखना है, ताहिर फजल हुसैन का. फिर अभी मैं आपको एक और नाम बताऊंगा, द ग्रुप दैट दे हैड, उसका नाम. केस स्टडी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्पेशली सिक्योरिटी का जो आपका सेक्शन आएगा पेपर नंबर 3 के अंदर, एसे के अंदर एंड एथिक्स के अंदर भी आप कहीं ना कहीं इसको डाल सकते हैं. दैट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू पुट इट, बट हैव दैट केस स्टडी वाला जो चीज़ है उसके अंदर, और सिक्योरिटी के अंदर भी आ जाएगा. तो क्रिएट दैट टैग्स कि कहाँ आएगा. Now in this, what he says is that if local people are not with you, and आज की डेट में the problem is गवर्नमेंट ने local जो community है उसको एलिनेट कर दिया है, because of the fact that वो anti Muslim जो आपका rhetoric है वो इतना ज़्यादा हो गया है that people are not coming to you and giving you that information.
वॉर्स आर नॉट वन टिपिकली, अगर अगर आप ऐसे एरिया में करते हो तो वॉर्स आर नॉट वन विद योर मशीन्स, नॉर इज इट रन, आई मीन वन विद योर आर्मी, इट इज़ रन विद लोकल इंटेलिजेंस. सी हाउ US could not win the Vietnam war, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द गुरिल्ला वर्क, जो उनका गुरिल्ला वॉरफेयर था वो उसने परेशान कर दिया था उनको. तो लोकल पीपल अगर आपके साथ नहीं, यू कैन नॉट विन सच काइंड ऑफ इंसर्जेंसीज. एंड दैट इज़ वॉट वी इज दैट दे आर सेइंग दैट पूरे जम्मू के अंदर, पूरे रीजन के अंदर देर आर ओनली 18 to 20 militants, and these cannot be handled by Rafales, and these cannot be handled by your tanks. What you need is, and this is, fighting is just 2% of the job, information is everything, and intelligence agencies are not getting the right kind of information because they are not making effort to tap the right sources. Their approach to people is all wrong. So people centric human intelligence जो होता है, human INT बोलते हैं, human INT is the key for all of this. And यहीं पे लास्ट, अगर आप इस पेज पे जो लास्ट कॉलम है उस पर देखोगे तो इश्यूज दे रखे हैं कि वाई पीपल आर नॉट देयर बिकॉज द एनिमीज आर टेलिंग दैट हिंदुत्वा गाइज विल कन्वर्ट ऑल मुस्लिम्स इनटू हिंदूज. देन सेकंड इज दैट इनको पहाड़ी जो कम्युनिटी, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का इनको स्टेटस चाहिए बिकॉज ऑफ, अगेन एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन रिजर्वेशन, एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन कि हमें क्या मिलेगा, तो वो चीज़ है. देन मनी इज अ ह्यूज फैक्टर दैट ऑल ऑफ दीज पीपल पे गुड अमाउंट ऑफ मनी टू गेट इन टू टेररिज्म की. आप मत बताओ. द अदर इशू इज़ ड्रग्स स्मगलिंग से पैसा यहाँ पर आता है. देन यहाँ पर व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़, इस जो नेक्स्ट पेज पे लास्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, उसका लास्ट पैराग्राफ देखो. Hussain soon joined village defense committee as special police officer and was given 1500 per month and an AK-47 to basically fight militants. This is what you do. ठीक है, you train them. At the same point of time you make this organization very I mean organizational base दो इसको. बट ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे. यू नीड टू हैव डेवलपमेंटल पाथ एज वेल, क्योंकि कई बार ये काम किया, कई बार बैकफायर किया. देयर वाज समथिंग लाइक दिस दैट हैपेंड इन छत्तीसगढ़ विच वाज कॉल्ड एज सलवा जुदम. पढ़ना है इसके बारे में, सलवा जुदम. दिस वाज ऑल्सो अ पीपल्स वर्क फॉर, लोगों की खुद की आर्मी गवर्नमेंट ने बनाई थी. बट उसके केस में भी काफ़ी सलवा जुदम ने भी काफ़ी इंटरवीन किया था और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक कर पाए थे. तो और इन्होंने बनाया था, ये विलेज डिफेंस फोर्स कमेटी ने बनाया था पीर पंजाल स्काउट्स अंडर द बैनर ऑफ जम्मू पीस मिशन. तो ये जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वो है कि हाउ क्या कहते हैं, जो सोशल पुलिसिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर इंटायर कम्युनिटी पुलिसिंग एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, और ये आपको मैं अभी एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये आपको सोशल पुलिसिंग कहाँ यूज़ होता है. इसमें वुमेन का बहुत बड़ा रोल है. और ये मैं आपको बताऊंगा सोशल पुलिसिंग का रोल, स्पेशली पबैट जिनके पास ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. और ये जो है इसमें अभी रथ यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसके इसमें भी आपको बताऊंगा सोशल पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, पीपल हु विल इन फ्यूचर गेट इनटू IPS, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू कीप अ चेक ऑफ इंफॉर्मेशन. Then so these are the important ones. Then let's come to page number 9, Geeta Press getting the this thing, Gandhi Peace Prize. तो गांधी पीस प्राइज़ में आपको पता होना चाहिए कि गांधी पीस प्राइज़ किस लिए मिलता है. कई बार प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो गांधी पीस प्राइज़ किस लिए मिलता है, ऐसे ये डिफरेंट पीस प्राइजेज हैं, कौन देता है, कैसे होता है वो, कई बार वन ऑफ द मैच, 2 ऑफ द मैच, 3 ऑफ द मैच, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो गांधी पीस प्राइज़ ओपन टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर. और इसमें क्या क्या मिलता है, 1 करोड़ रुपये वगैरह मिलता है. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज, अगर जो लास्ट अगेन न्यूज़ है कि गीता प्रेस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रेस एंड ओनली इंडिजिनस publishing enterprise of colonial India that continues to thrive in the 21st century. ठीक है, so this news. Then page number 10, आज का न्यूज़पेपर थोड़ा बड़ा है. पेज नंबर 10, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर टॉक्सिक सिरप्स, इसके ऊपर हम हिंदू के अंदर भी आर्टिकल पढ़ेंगे. टॉक्सिक सिरप्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस इन मेंस दिस ईयर. WHO probe flags 20 products in India and Indonesia. अब इंडिया के जो कफ सिरप्स हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, इंडिया के आई ड्रॉप्स में भी प्रॉब्लम है,
और इंडिया के अब एनेस्थीसिया वाले प्रोडक्ट्स में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है. दैट मीन्स इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर है, इट इज़ नॉट कीपिंग एन इफेक्टिव चेक ऑन द प्रोडक्ट्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया इज सीन एज द फार्मेसी ऑफ द साउथ. पूरे साउथ एन एस ए साउथ बेसिकली पूरे के पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में वी आर दी वंस हु प्रोवाइड चीप जेनरिक प्रोडक्ट्स. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ द फैक्ट दैट हो सकता है दैट अदर कंट्रीज माइट बी प्रोवाइडिंग काउंटरफीट. In the past, China has sold products which they say that they are made in India, but there have been counterfeit products, medicines which come from China and are sold in the world just to malign the name of Indian pharmacy. ये भी एक एंगल आपको ध्यान में रखना है when you are writing this. So we need our external agencies also to get into this, as well as the drug controller, which is जो हमारा वो है फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ड्रग कंट्रोल, एक बार सर्च कर लेना, CSDO जो है ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट नीड्स टू कम इन टू पिक्चर. अब यहाँ पर क्या है दैट टॉक्सिक मेडिसिन है, और यहाँ पर जो मेडिसिन बात की जा रही है कि हमारे जो सिरप्स हैं उसके अंदर स्पेशली यू हैव डाई इथाइल ग्लाइकोल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मिलाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ अनदर एलिमेंट. ये दीज आर दी वंस जो कंटामिनेट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इसको. एंड दीज हैव बीन रेज नॉट जस्ट इन वन कंट्री. ये जो पहले इशू था, दिस वाज रेज्ड इन गाम्बिया, देन इट वाज आल्सो रेज्ड इन उज़्बेकिस्तान, दैट वाज आल्सो रेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ड्रग रेगुलेटर ने इन माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया और मार्शल आइलैंड्स के अंदर, और अब श्रीलंका के अंदर. तो मल्टीपल एरियाज से जब आपकी रिपोर्ट आ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट वन ऑफ इंसिडेंट. तो वी नीड टू कीप अ गुड चेक ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग. देन नेक्स्ट पेज 11 पेज पे वी हैव अमिड ऑनगोइंग हीट वेव डेथ टोल माउंट्स अप इन यूपी. तो वही हीट वेव वाला इशू है. और इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको जो बताया कि हीट वेव की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड दी अहमदाबाद हीट प्लान पता होना चाहिए, एंड हाउ टू काउंटर इट. ठीक है. देन एडिटोरियल पेज फोर्स, important articles. Editorial page, landmark journey. Modi ji is now has already landed in US. ठीक है. सो बेसिकली ही जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है इंडिया और US का. एंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एबल टू डू इज़ वो अपने डायस्पोरा को आगे लेके ही इज़ बीन एबल टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ मेजर प्लेयर इन US पॉलिटिक्स एज वेल. Imagine someone, an Indian politician being addressing a huge gathering in and US के अंदर क्या कहते हैं, the Indian diaspora not only is huge, it contributes 6% to their GDP. तो हमारे इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, और उनका GDP में हमारे इमिग्रेंट्स का GDP में भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. सो जैसे ज्यूज़ एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी इकोनॉमी का, इंडियंस हैव बिकम अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर इकोनॉमी, एंड दैट्स व्हाई द सपोर्ट इज़ फ्रॉम बोथ हाउसेज, कांग्रेस से भी और सेनेट से भी, जबकि एक रिपब्लिकन्स के पास है और एक डेमोक्रेट्स के पास है. बट बाय पार्टिजन सपोर्ट है इंडिया का, एंड विच इज़ बीइंग लेवरेज्ड बाय मोदी जी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो मेजर इश्यूज जिनके ऊपर हमारा डिस्कशन है, दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. Geopolitics because of the fact what is happening in South China Sea, and geoeconomics because the entire new architecture we want कि India should play a huge role. और उसमें अभी एक आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एक्सप्लेन पेज पे है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं. सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल दैट वी आर गोइंग इन फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अब इसके अंदर हमने जेट इंजन के बारे में बात कर ली है ऑलरेडी. अभी मैं आपको डिफरेंट अग्रीमेंट्स बताऊंगा जो आपको पॉइंट आउट करना है, जो आपको लिखने हैं, स्पेशली जिनका PSI और ऑप्शनल है. ठीक है. सो जेट इंजन टेक्नोलॉजी, 5G 6G के ऊपर एग्रीमेंट्स, सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत बड़ा अग्रीमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड कुछ इरिटेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इरिटेंट्स हैं. अब व्हाट वी हैव इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू एड्रेस द जॉइंट सेशन, एंड ही इज़ द थर्ड या फोर्थ पर्सन एवर टू बेसिकली एड्रेस दी जॉइंट सेशन. और वो स्टेट विजिट वाला जो उनको स्टेटस मिला है,
He's only the third or the fourth person, I think the fourth person to do that throughout the history of the world, US के अंदर जिसने किया है. ठीक है. सो ये हिस्टोरिक हेजिटेशंस है, हम उसके आगे बढ़ के आ गए हैं. अब वो रिमेंबर दैट डायलॉग दैट वी सेड कि हम क्या कहते हैं, चाइना के साथ ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे, यूएस के साथ हेजिटेंट थे, स्केप्टिकल हमारा रिलेशनशिप रहा था, और ओवर डिपेंडेंस रहा थी हमारी रशिया के साथ में. सो वी रिकैलिब्रेटेड दैट इक्वेशन. एंड इसका लास्ट पैराग्राफ देखोगे तो मीनवाइल रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज मार्क्ड इंक्रीजिंगली असर्टिव चाइना has created imperatives for both Delhi and Washington to elevate the strategic partnerships in political, economy, technology, military domains. Geopolitical dynamics, Indo-Pacific को लेके, geo-economic dynamics, world order को लेके, because China has become a major player. At the same point of time, we do not and we cannot contain China. China is there now. ठीक है, it cannot be contained anymore. बट वॉट वी वॉन्ट इज़ टू बैलेंस द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप चाइना को काउंटर नहीं कर रहे हो, और इंडिया चाइना को काउंटर नहीं कर रहा. इंडिया जो है चाह रहा है एक बैलेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, सो दैट एक यूनिपोलर एशिया ना बन जाए, एक ऐसा एशिया ना बन जाए जहाँ पर हेजमनी हो. सो वी वॉन्ट एवरी कंट्री टू हैव इट्स ओन, टू हैव देयर राइट्स एंड पीसफुल एंड सिक्योर बॉर्डर. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट. सो that should be that is the aim that we have, और उसके लिए we are working together. ठीक है. Then the next thing is in hot seat. ये हम ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन समर्स, रिमेंबर दैट 3 दिन से हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन समर्स जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया है. एंड अगर बट जो हम जो ट्रैक करते हैं वो हम करते हैं लॉन्ग पीरियड में, 20-30 ईयर्स में क्रॉस किया है कि नहीं किया. If that increases in 20-30 years from the pre-industrial level, then we say that there is problem. But the indication is already there that the temperature has started to increase. The other issue that we have to talk about here is funding. और funding के ऊपर हम 1-2 आर्टिकल्स और पढ़ेंगे. इनफैक्ट हिंदू में आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, फ्रांस के अंदर समिट शुरू हो रहा है फंडिंग के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट कि फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ का जीडीपी ऑलरेडी गिर गया पैंडेमिक की वजह से. देयर डेट लेवल्स आर ऑलरेडी हाई. दे cannot finance all these new technologies right now. They cannot afford to finance, and that's where we need transfers from the developed countries, and we need grants. We don't need, most of the funding comes in form of loans. सो लोग क्यों क्या कर रहे हैं, लोग इस एवेन्यू को लोन्स के फॉर्म में एक और एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म बना रहे हैं. बट व्हाट वी नीड इज़ नॉट लोन्स. दीज कंट्रीज नीड ग्रांट्स फॉर चेंजिंग देयर इकोनॉमी टू अ लो एनर्जी पाथ इकोनॉमी. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. और फ्रांस इज होल्डिंग दिस इंटरनेशनल समिट फॉर taking stock of ways and means to increase financial solidarity with ग्लोबल साउथ. ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर हम बात अभी करेंगे. एंड लिविंग विद, और हमने फाइनेंसिंग के ऊपर बात ऑलरेडी करी हुई है कि कुछ $4 ट्रिलियन चाहिए, और हमारे पास सिर्फ अराउंड $400 बिलियन हैं. रीड दैट, वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको फाइनेंसेस बताया था वो आपको पता होना चाहिए. तो क्लाइमेट चेंज के अंदर एक पेज बना के रखो. क्लाइमेट चेंज के अंदर फाइनेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर ये जो फिगर्स है ना इकोनॉमिक्स की, वो लिख के रख लो अपने पास कि कितने ट्रिलियन डॉलर्स हैं और कितने ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए. दैट गिव्स वेट टू योर आंसर कि येस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग इन द एयर की फाइनेंस कितना अवेलेबल है, मिटिगेशन के लिए कितना अवेलेबल है, क्या कहते हैं ये अडाप्टेशन के लिए कितना अवेलेबल. दीज आर इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि अडाप्टेशन के लिए वी नीड अराउंड 350, सिर्फ अडाप्टेशन के लिए $350 बिलियन पर ईयर, वी ओनली गेट अराउंड $330 बिलियन. और मेजर जो पैसा मिल रहा है दैट इज थ्रू लोन्स. इफ यू सी 70% of the public climate change finance is provided through loans, whereas the funder expects a financial return. Interventions like disaster warning systems or flood defenses do not generate any revenue. So how will you generate revenue in these? Or we need to invest in, because climate change is already there, so we need to have this adaptation strategy. इससे पहले वाले पैराग्राफ में शुरू में लिखा हुआ है, we need to start living with weather vagaries which require paradigm shifts in agriculture, urban planning, disaster management, mitigation systems. So all of this is required. So read about this particular article. This is going to give you a good amount of information for climate change.
देन गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ बेसिकली सात्विक एंड चिराग्स, बेसिकली वो जो हमने कल डिस्कस किया था, इंडोनेशिया में सुपर 100 जो उन्होंने सुपर 1000 जो जीता है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसको आप यूज़ कर सकते हो इन योर ऐसे, अगर आप अभी ऐसे कोई लिख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या उसको आप मे बी किसी तरीके से यू कैन थिंक ऑफ सम वे कि आप उसको एथिक्स में भी डाल पाओ, ठीक है। तो एक चीज़ और फोक्स आई बीन ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि सिलेबस रटना शुरू करो। यू शुड रिमेंबर योर सिलेबस इन एंड आउट, कि पेपर नंबर 1 के अंदर कौन सा पॉइंट है, 1C क्या है, 1D क्या है, 1E क्या है। आप हर रोज़ एक बार पेपर को मतलब सिलेबस को देखो। एक बार आपने सिलेबस रट लिया, आपको सिलेबस के ईच पॉइंट्स रट गए, तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मैं कहाँ डाल सकता हूँ इसको। सो नोइंग योर सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रतिभा ने भी बोला था, हर पॉइंट सिलेबस का कवर्ड होना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर योर मेंस। देन आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट कोटेशंस की डायरी, ठीक है। कोटेशन हम लिखवा रहे थे, एक कोटेशन अपने यहाँ पर लिख लो। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। महात्मा गांधी की कोटेशन है। आप अपनी कोटेशन की डायरी मेंटेन करोगे, और जहाँ पर भी आपको लगेगा इसको एनवायरनमेंट में डाल सकते हो, इसको न्यूट्रिशन में डाल सकते हो, इसको बहुत जगह डाल सकते हो आप। जहाँ पर आपको लगेगा कि आ सकता है, इसको कोटेशन को डालोगे। और कोटेशन संडे को रिवाइज करनी होगी, और अनटिल अनलेस आप अपने आंसर्स में कोटेशन यूज़ करोगे, आपको ज़िंदगी भर कोटेशन नहीं आएगी। कोटेशन इज़ लाइक अ वेपन दैट यू हैव टू यूज़ ओनली वंस यू यूज़ इट, यू विल रिमेंबर इट। इफ़ यू डोंट यूज़ इट, इट इज़ एज गुड एज यू हैव नॉट डन इट, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। नाउ फेयर सेटलमेंट का जो आर्टिकल है, इट्स बेस्ड ऑन द RBI इशू। रिमेंबर दैट RBI इशू, दैट RBI ने नया सर्कुलर निकाला है, और उसके ऊपर डिबेट है, काफ़ी अच्छी डिबेट करी हुई है उसके ऊपर। ये बेसिकली और बड़ा अच्छा क्रिटिकल रिव्यू है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू शुड राइट अ क्रिटिकल रिव्यू, बाय द वे। तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी, उसके ऊपर डिबेट क्या है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, RBI ने कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स कैन कम विद अ सेटलमेंट विद द बैंक्स, एंड उसको फिर 12 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद दे कैन टेक अनदर लोन्स। विल दैट लीड टू एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, कि बेसिकली आपने लोन लिया और उसके बाद आपने कहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा, उसके बाद आपने वापस यू आर सेइंग कि मैं वापस फिर से लोन ले लूँगा, और ये जो पैसा गया, ये जो है, मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, मैंने 30 करोड़ रुपए दिए, सेटल करके वापस 70 करोड़ रुपए सरकार, मतलब बेसिकली टैक्स पेयर्स मनी इज गॉन, एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री टू बोरो मोर। So does it give perverse incentives? Does it create a market failure? Does it create a basically moral hazard in the banking industry, especially in case of a banking industry like India, which is public sector dominated? Public sector dominated में क्या प्रॉब्लम होता है कि सरकार ऊपर है, और हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोई एक सरकारी बैंक जो है किसी का लोन माफ़ कर दे। फॉर एग्जांपल, विजय माल्या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो कौन सा बैंक का मैनेजर आपको लोन नहीं देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही नोज दैट दिस लोन इज़ नॉट ड्यू। सो दैट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग इंडस्ट्री। और उसी के लिए वी हैड फॉरगेटिंग 2015 के अंदर एक वो आई थी, 7 पॉइंट्स थे उसके अंदर। जस्ट रीड अबाउट दैट। वो 7 पॉइंट्स क्या थे? एक तो उसके अंदर बैंक्स ब्यूरो था, और फॉरगेटिंग दैट 7th थिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 4 Rs की स्ट्रैटेजी होती है, वो आप जरूर लिख लो। इंद्रधनुष प्लान, यस, इंद्रधनुष प्लान। सो इंद्रधनुष प्लान के बारे में एक बार पढ़ना कि व्हाट वाज दैट इंद्रधनुष प्लान, ठीक है। लिख लो इन चीज़ों की, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम आएगा इंद्रधनुष प्लान। और 4 Rs कि हाउ वाज इंडिया एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इट्स NPA प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको मनी, जो लोग आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के भी हैं, तो ये आपको सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में मनी एंड बैंकिंग में भी काम आएगा। रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले तो रिकग्नाइज करो कि आपके पास प्रॉब्लम है या नहीं है NPA की, फिर उसके बाद उसको सेटल कैसे करना है, रिकग्निशन, फिर उसके बाद उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। ये 4 Rs पढ़ लेना कि वो 4 Rs क्या हैं, ठीक है। यू कैन पुट इट ऑन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट फोक्स, अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आई वॉन्ट द ग्रुप टू बी वेरी एक्टिव, तो उस ग्रुप पे डालो ना। सब आप पढ़ रहे हो तो किसी और का हेल्प हो जाएगा, कोई चीज़ पढ़ेगा तो किसी को हेल्प हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव टाइम, स्पेशली जिनका 2024 में अटैम्प्ट नहीं है, जिनका बाद में,
स्टार्ट सर्चिंग ऑन दीज एंड पुटिंग इट ऑन द ग्रुप, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला आप ग्रुप पे डाल दो उसको, ठीक है. सो बैंकिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ व्हाट दिस आर्टिकल सेज इज कि वेन एवर अ पर्टिकुलर बैंक फेसेस एन इशू देन इट हैज़ ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज कि यू कैन गो फॉर दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट. द अदर इज कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. नाउ द बैंक हैज़ टू चूज. अभी बैंक के ऊपर है ना कि आईबीसी करेंगे तो 4 साल केस चल जाए, 2 साल केस चल जाए, और कितना पैसा मिल रहा है. तो 2 साल बाद हो सकता है मुझे 60% पैसा मिले और आज मुझे हो सकता है 50% पैसा मिले. आज मैं 50% के लिए एग्री हूँ. तो इट डिपेंड्स ऑन द बैंक. तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग. व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सेटलमेंट एंड इट इज़ एट दिस इज करेंटली ऑल्सो देयर. अभी भी ये होता है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. we need to maximize our recovery as soon as possible. This is our aim. That is not wrong. The problem is that if you see the second column, the problem is that India के अंदर we have these public sector banks which are there जहाँ पर political interference हो सकता है. और दूसरा, this RBI circular also doesn't say that nothing in this is prejudicial to the criminal proceeding. अगर किसी ने क्राइम किया है, डिफ़ॉल्ट करके क्राइम किया है, साइफन ऑफ किया, तो वो क्रिमिनल केस अपना अलग चलता रहेगा. ऑल यू आर सेटलिंग इज यू आर सेटलिंग द इकोनॉमिक कंसर्न कि मेरा 50% पैसा दे दो या 60% पैसा दे दो. क्रिमिनल केस कोर्ट में अलग चलता रहेगा. नथिंग इन दिस इज प्रेजुडिशियल टू द क्रिमिनल केस दैट इज पेंडिंग इन द कोर्ट्स. इट इज़ जस्ट द फाइनेंशियल कंडीशन. बट द इशू इज कि वैलिड कंसर्न इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी कर रहे हैं इसके अंदर. सो दैट इज़ दिस थिंग. और नेक्स्ट इज सेकेंड थर्ड कॉलम के अंदर जाओगे तो दिस द ब्रॉडर इशू इज आरबीआई रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 हैज़ रिकमेंडेड आरबीआई प्लेस ऑल ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द वेबसाइट फॉर स्टेक होल्डर्स. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन होता है आरबीआई का, तो वो इम्प्लीमेंट करने से पहले दे पुट इट ऑन देयर वेबसाइट फॉर स्टेक होल्डर्स कि बेसिकली मैं कोई नया एक्शन लेने वाला हूँ, मैं कोई नई चीज़ लेना. सपोज मैं कहता हूँ मैं कॉलेज के अंदर इंटरनल्स की नई पॉलिसी लेके आना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द न्यू पॉलिसी, मिनिमम यू हैव टू अटेंड 50% ऑफ क्लासेस. इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इम्पोजिंग इट, मैं पहले कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा और सबसे पूछूंगा कि इज इट अ राइट पॉलिसी और नॉट. दिस इज द स्टेक होल्डर्स अप्रोच. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका गवर्नेंस के अंदर भी पॉइंट आ जाएगा और ये आपका उसके अंदर भी आ सकता है. ऐसे के अंदर भी आप डाल सकते हो कि आरबीआई के पास एक रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 है जिसके अंदर वो कहता है दैट एनी पर्टिकुलर न्यू ड्राफ्ट रिकमेंडेशन should be put on their website for stakeholder comments and feedback. But the problem is this is such an important issue and this was not posted as a feedback option. ये आपने डायरेक्टली पोस्ट कर दिया. तो फीडबैक लेते तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, इतना बड़ा इसके ऊपर बवाल नहीं खड़ा होता. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिकल थॉट कि आपने प्रोज भी बोले और फिर साथ में कॉन्स भी बोले, एंड दैट इज़ हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर्स कि आप दोनों साइड को मैनेज करके आप आंसर लिख पाओ. देन एवरीबडीज रथ यात्रा. नाउ आई वांट यू टू डू अनदर रिसर्च. इंडिया में कौन कौन सी रथ यात्रा होती है. सबसे बड़ी पुरी की रथ यात्रा होती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी रथ यात्राएं होती हैं. जैसे यहाँ पर अहमदाबाद की रथ यात्रा है और ये IPS ऑफिसर ने लिखा है. और यहीं पर नीचे अगर आप सेकंड कॉलम में लास्ट पैराग्राफ देखो, अहमदाबाद पुलिस हैज रीच्ड आउट टू विमेन इन महिला मोहल्ला मीटिंग्स चेयर्ड बाय फीमेल्स पुलिस ऑफिसर्स. Women in households are quick to notice if regular vegetable or local vendor misses a day or has changed. This remarkable awareness is crucial for social policing and hence women have become eyes and ears of the police. Social policing and women का role बहुत important है. This also comes to the point जो हमने मेतीज और उसके अंदर मणिपुर के अंदर बात करी थी. Remember that community of women that is coming with torches. तो अगेन ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस थिंग. बट जो आपको रिसर्च करनी है वो आपको करनी है इंडिया की रथ यात्रा, जो हम अभी बात करने वाले हैं एक और आर्टिकल के अंदर. देन इंडियाज़ डायस्पोरा मूवमेंट. इन इंडियाज़ डायस्पोरा मूवमेंट दिस बेसिकली इज अगेन टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि कैसे प्रेजिडेंट ऑफ US वांटेड मोदी. ट्रम्प ने बेसिकली मोदी को लास्ट टाइम 2019 में बुलाया था अपने इलेक्शनरिंग के लिए. तो see the importance of a particular foreign dignitary that person can change, can have an impact on politics of someone like a country like US.
and this is because our diaspora is very important, and we have 45 lakh people, which is just 1% of US population, but contributes 6% of their national income. But apart from that, Indian origin people are holding very important positions both in गवर्नमेंट में सेनेटर्स, गवर्नमेंट में मेयर्स, गवर्नमेंट में क्या कहते हैं कांग्रेस पर्सन, ये सारे में भी हैं. और वेरी इंपॉर्टेंटली बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे. फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, तो वर्ल्ड बैंक का नाउ दी हेड. तो अब यू हैव इंडियंस रिप्रेजेंटिंग मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस. और ये हमने बात करा था कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ मल्टीपोल इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो देन यू हैव this thing. Biden has already appointed 130 Indians for key positions. Then ये बस आप आर्टिकल पढ़ सकते हो. और हमने बेसिकली बोथ वेज ये कम्युनिकेशन रहता है. हम उनको जो बाहर वाले लोग हैं हम उनको प्रवासी भारतीय दिवस एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. अच्छा, आई वांट यू टू research about two things again. Difference between PIO, person of Indian origin card, and OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके ऊपर आप रिसर्च करोगे. देन कमिंग टू पेज नंबर 15, रथ फिट्स फॉर द लॉर्ड्स. अब यहाँ पर 3 रथ आपको पता होने चाहिए. ये रथ यात्रा क्या होती है, वाई इज दिस पूरी का जो ये टेम्पल है इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे जिनके पास टाइम है. बट वॉट यू नीड टू रीड मोर इज दैट यहाँ पर 3 रथ होते हैं. एक नंदी घोषा, एक दर्पा दलन और एक तालाद वजा. ये 3 अलग अलग रथ्स हैं. इनमें अलग अलग लॉर्ड्स हैं. जगन्नाथ का नंदी घोषा है, गॉडेस सुभद्रा का ये दर्पा दलन है, और बाला भद्रा का ये तालाद वजा जो है वो है. ठीक है. इसके ऊपर डिटेल दे रखा है कि कौन सी ये जो रथ यात्रा होती है कैसे होती है. ये बेसिकली ये 3 किलोमीटर की ये जर्नी करेंगे फ्रॉम देयर प्लेस टू देयर आंट्स रेजिडेंस एट गुंडीचा टेम्पल. और फिर वापस जाएंगे ये अपने वहाँ पर विच इज़ कॉल्ड एज बहुदा यात्रा. तो ये पूरा आपको ये जो शुरू का जो पोर्शन है फर्स्ट और जो सेकंड जो कॉलम है आपको ये पढ़ना है. इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखे हैं कि व्हाट इज़ दिस रथ यात्रा अबाउट. ये आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहाँ पर भी आएगा. सिर्फ नितिन सिंघानिया पढ़ के नहीं चलेगा. आज की डेट में नितिन सिंघानिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा. ठीक है. तो यू नीड टू हैव योर ओन दिस थिंग. और इसका जो लास्ट कॉलम है वो भी पढ़ सकते हो कि कौन मैनेज करता है. और देयर इज दिस रिचुअल दैट इज कॉल्ड एज चेहरा पनहारा रिचुअल, जिसमें वो फ्लोर को स्वीप करते हैं ऑफ द चैरियट थ्रू गोल्डन ब्लूम. ठीक है. सो रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आर्ट एंड कल्चर. अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, आज थोड़ा हमें टाइम लगेगा, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं. एक आ रहा है वाई साइक्लोन बिपरजॉयज पाथ वाज डिफिकल्ट. इसके अंदर बेसिकली आर्टिकल का क्रक्स क्या है. आर्टिकल का क्रक्स इज दैट बिकॉज ऑफ 2 एंटी साइक्लोन्स दैट वर ऑल्सो वर्किंग. ठीक है. तो उसकी वजह से इसका जो पेस है ये हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या है और कहाँ पर एंड मोमेंट तक नहीं पता था. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम था उसने लास्ट मोमेंट तक इसको ट्रैक किया एंड वी वर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्गर अगर लैंडफॉल क्या होता है, जब वो आई जो है वो कम्प्लीटली आ जाता है आपका लैंड के ऊपर, और उसका जो इंजन होता है वो कट हो जाता है. इंजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो इंजन होता है वो लेटेंट हीट होता है. लेटेंट हीट वाटर से आ रही होती है. अब उसका इंजन ही कट ऑफ हो गया है तो वो साइक्लोन बंद हो जाएगा. बट अगर ये जो साइक्लोन्स हैं ये धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे मूव करेंगे फ्रॉम सी टू लैंड. अगर उसकी पेस मूवमेंट की स्लो होगी तो धीरे धीरे आएगा, तो उसका जो लैंडफॉल का टाइम प्रोसेस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. सी रिमेंबर दिस इज एन इंजन. सी दिस एज अ साइक्लोन जिसको नीचे से फीड मिल रहा है और ये लैंड है. अगर वो लैंड पे धीरे धीरे आएगा तो उसका वो फीड तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक वो पूरा का पूरा यहाँ नहीं पहुँच जाएगा. सो इफ़ द साइक्लोन इज़ वेरी स्लो, अगर वो यहाँ तक भी पहुँचा तो भी उसको यहाँ से अभी भी फीड मिल रहा है लेटेंट हीट का, और जब तक वो पूरा का पूरा कंप्लीट होकर लैंड पे नहीं आ जाएगा तब तक उसको फीड मिलता रहेगा. सो that is what it is saying, that if a cyclone is slow in its movement
देन उसका डिस्ट्रक्शन इज़ मच मोर, बिकॉज उसका लैंडफॉल जो होगा वो लंबे पीरियड तक होगा. जो साइक्लोन था, और जब भी आप साइक्लोन का एग्जांपल दोगे, आप सुपर साइक्लोन ऑफ 1998 ऑफ उड़ीसा का हमेशा एग्जांपल दोगे, विच कॉज्ड अ मेजर डिस्ट्रक्शन इन द कंट्री. और उसके बाद से हमने साइक्लोन प्रिडिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. तो वो 30 आवर्स रहा था दैट पर्टिकुलर साइक्लोन, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्लो साइक्लोन था जो मूव कर रहा था. स्लो इन द सेंस उसका मूवमेंट स्लो था, विंड्स तेज थी. दोनों में डिफरेंस है, मूवमेंट ऑफ साइक्लोन एंड विंड स्पीड, सिवेरिटी ऑफ साइक्लोन. आई हैड ऑलरेडी आस्क्ड यू कि आप सिवेरिटी के ऊपर पढ़ोगे कि साइक्लोन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कि वो कितना सिवेयर है, उसकी विंड स्पीड्स के ऊपर है. देन गीता प्रेस का आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है कि गीता प्रेस जो है वो एक कल्याण मैगजीन करके लेके आता था, और वो कई करोड़ मैगजीन्स इसकी बिक चुकी हैं, बट स्टिल रीड दिस पर्टिकुलर दिस थिंग. एंड इस पर्टिकुलर प्रेस का थोड़ा सा जो वो है बैकग्राउंड है, वो हिंदू महासभा के साथ भी रहा है. ठीक है, तो एक बार ये आर्टिकल पढ़ लेना. इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. व्हाट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जिनका PSI है उनको तो ये पूरा आर्टिकल जो है कट पीट के अपने कॉपीज़ में डाल लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि, और इनफैक्ट GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आर्टिकल के अंदर सब कुछ दे रखा है आपका. परफेक्ट आर्टिकल है ये लिखने के लिए. इसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट, पहले तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, नेतायाहू और राबिन के बाद ही इज़ द 5th पर्सन जो दूसरी बार एड्रेस कर रहा है कांग्रेस को. देन इंडिया और इनका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया है. एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट, तो आप ऐसे ही हेड लिखोगे, इंडिया और US का इकोनॉमिक एंगेजमेंट में US जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया. $191 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, और जबकि वो इंडिया के फेवर के अंदर है. वी हैव अ फेवरेबल ट्रेड विद US, और US के केस में हम 9th लार्जेस्ट वो हैं. एंड US कंपनीज हैव इन्वेस्टेड $60 बिलियन इन डिफरेंट एरियाज, एंड हमारी कंपनीज ने $40 बिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है. एंड उसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि बाइडन ने अनाउंस किया था कि इंडियन एयर इंडिया ने जो है वो क्या कहते हैं, ये जो 200 बोइंग एयरक्राफ्ट से, 200 नहीं एक्चुअली 470 एयरक्राफ्ट है, इट्स नॉट 200. आई थिंक दिस इज एन एरर है. 470 एयरक्राफ्ट्स खरीदे थे उन्होंने, और जिसकी वजह से 1 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड अक्रॉस 44 स्टेट्स. तो दिस शोज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडिया और इनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेटेजिक अंडरपिनिंग जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट अगेन आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि जब आप ऐसे लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे काउंटरिंग चाइना. यू विल राइट दैट वी वॉन्ट अ मल्टीपोलर एशिया. We don't want to contain China, but at the same point of time we don't want a hegemonic Asia. तो वो चीज़ लिखोगे यहाँ पर. देन इसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हमारे मल्टीपल डायरेक्शंस हैं. क्वाड स्टार्टेड एज इंडियन ओशन सुनामी का जो 2004 सुनामी है उसके लिए शुरू हुआ था, बट आज की डेट में सिक्योरिटी उसका आर्किटेक्चर बन गया है. I2U2 इंडिया, इसराइल, US, सऊदी अरेबिया, ये बहुत सारे एरियाज़ के अंदर they are now talking about. Then very important, India US initiative on critical and emerging technologies, double star, very very important ये चीज़, क्योंकि ये नई चीज़ शुरू हुई है where we are talking about critical technologies, defense technologies as well, and most importantly semiconductor technologies. और सेमीकंडक्टर के लिए क्या कहते हैं, इंडिया वांट्स दैट US इंडिया को जो हम इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का इंडिया को पार्ट बना दे, क्या कहते हैं US. तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन एंड द पॉसिबिलिटी दैट इंडिया कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्या कहते हैं, इंडिया इज़ ऑलरेडी इन्वेस्टिंग जो है $10 बिलियन इन दिस एरिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर यूज एवरीवेयर, एंड यहाँ पर अभी चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. एंड US इज़ ऑलरेडी परस्यूइंग समथिंग कॉल्ड एज चिप 4 अलायंस. चिप 4 क्या है, इसके अंदर US, ताइवान, जापान एंड कोरिया, ये मेजरली 3 कंट्रीज़ हैं जो चिप्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं. ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स. इंडिया ऑल्सो वांट्स टू एन एक्सेस टू दीज कंपोनेंट्स, एंड दीज चिप 4 का पार्ट बन जाए इंडिया. देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस डील्स, वी ऑलरेडी नो GE का 414 टर्बोफैन जेट इंजन के ऊपर हमारी बात हो रही है, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. बट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट शुड नॉट बी स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, इट शुड रियल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी देयर.
एंड ये हमारे तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए दिस विल बी दी परफेक्ट इंजन. देन उसके बाद सम हेडविंड्स क्या क्या हैं कि अभी भी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं जो अभी अलाउ नहीं करता यूएस, बिकॉज वो पुराने जो हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी उसके बाद से चेंज नहीं हुआ. देन दूसरा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है इंडिया का रिवोक कर लिया था ट्रंप ने 2019. नाउ व्हाट वाज दिस बेसिकली, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और उसको उसके लिए कुछ प्रेफरेंसेस मिलते थे, कुछ थोड़े टैरिफ कम होते थे इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए. तो वो जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था दैट हैज़ बीन रिवर्स्ड, और वो इसलिए रिवर्स किया गया था, इसलिए हटाया गया था क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर. देन फिर उसके बाद अनदर इशू इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ दैट हमारा यहाँ पर बड़ा अच्छा रिलेशन है, बट सबसे ज़्यादा तेल जो है हम खरीद रहे हैं रशिया से. So that's another issue that we have. Then very important, I've already asked you, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से अगर हमारे साथ हैं तो I've already asked you to read about this US led Indo-Pacific Economic Framework. इसके 4 पिलर्स हैं. India has still not signed the trade pillar. जो बाकी 3 पिलर्स हैं ऑफ सप्लाई चेन, टैपिंग क्लीन एनर्जी एंड कॉम्बैटिंग करप्शन, वो हमने साइन अप कर लिया. और सप्लाई चेन के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात करी थी, उसके ऊपर एग्रीमेंट चल रहा था. So all these 4 pillars you need to read in detail about this particular initiative. कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और उसका ट्रेड पिलर अब यूएस कह रहा है कि हम साइन करें, बट हम क्यों साइन नहीं करना चाह रहे हैं और क्यों हम इसको कंसिडर नहीं करना चाह रहे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कमिटमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, लेबर, डिजिटल ट्रेड एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट. व्हाट इज दिस कि यूएस चाह रहा है कि एनवायरनमेंट लॉज जो है, कोई भी प्रोडक्ट बने तो वो एनवायरनमेंट लॉज के अकॉर्डिंग हो. अरे हमारा एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, हमारे लेबर लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम योर लेबर लॉज, हमारा डिजिटल ट्रेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर डिजिटल ट्रेड, एंड सेम पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कितना सरकार प्रोक्योर कर रही है प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर नॉर्म्स. सो वी आर basically a little hesitant on these trade pillar apart from other things. And last, mineral security partnership का we have not been become a part of. This is basically critical minerals, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स, जहाँ पर हम चाइना पे डिपेंडेंट है. और यूएस ने एक नया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किया जिसमें 11 कंट्रीज़ हैं, बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, एंड इंडिया नीड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव टू सिक्योर इट्स रेयर अर्थ मिनरल्स. ठीक है. देन कर्नाटका's फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन, अगेन अ गुड आर्टिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं. लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बहुत अच्छी बात है वुमेन का एम्पावरमेंट होगा. ये बोल रहा है कि कैन यू अफोर्ड दैट थिंग, इसकी कॉस्ट होगी 4,000 करोड़ होगी, विच इज़ $500 billion. कैन यू अफोर्ड $500 billion एंड वेयर विल यू गेट द फाइनेंसेस फॉर फाइनेंसिंग दिस $500 billion. इतना इसका खर्चा होगा इस पर्टिकुलर स्कीम का. तो if you can afford it then that's good, but we need to find money for that. Then another economy पे आ जाओ. There's a long paper folks. Bombay High Court stays RBI's master circular till September 11. अब बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था, आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बोला था कि अगर किसी बैंक ने भी किसी भी अकाउंट को डिक्लेयर कर दिया फ्रॉड, तो क्या कहते हैं तो मतलब कोई भी बैंक किसी भी इंस्टीट्यूशन को फ्रॉड डिक्लेयर कर सकता है और उस बंदे को कहीं से लोन नहीं मिलेगा और उस बंदे को हेयरिंग भी नहीं मिलेगी. दैट बेसिकली आप मेरा अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर कर रहे हो, मुझे बिना हेयरिंग, मुझे बिना सुने हुए कि मेरा क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप मेरा अकाउंट को क्यों फ्रॉड डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है. एंड दैट गोज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कुछ. ठीक है. अगर आपके पास संडे को टाइम हो तो पढ़ लेना प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस. इफ़ आई हैव टाइम तो मैं आपको लीगल उससे बता दूंगा कि पीएनजे क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं पीएनजे के. उसका एक बहुत ही मेजर एलिमेंट होता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू बी हर्ड. तो हम एवरी इंडिविजुअल शुड बी हर्ड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. तो दिस बेसिकली ये जो है अब इसके अंदर क्या है, आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी, सेकंड कॉलम के अंदर आओगे तो आपके पास ये मिल जाएगा. once the bank classifies an account as fraud, it has to be reported to the central repository of information on large credit. अब ये क्या है, ये CLILC क्या है, ये बेसिकली है कि किसी भी बैंक ने अगर किसी भी एंटिटी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है तो आपके पास एक रिपोजिटरी है. थिंक ऑफ इट एज अ नोटिस बोर्ड.
कि कोई एक बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा है, आपने नोटिस बोर्ड पे बड़ा बड़ा लगा दिया सारे बैंक्स के लिए कि यार इस बंदे ने फ्रॉड किया, आप इसको लोन मत, पैसे मत देना। तो बिकॉज क्या होता था, कई बार क्या होता था, लोग एक जगह से लोन लेते थे, डिफ़ॉल्ट करते थे, तो दूसरे बैंक को पता ही नहीं होता था कि यहाँ से इसने लोन लिया हुआ है। अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कॉर्पोरेट कहीं का भी फ्रॉड करता है, तो ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जिसके ऊपर बेसिकली नाम आ जाता है दैट दिस पर्सन हैज़ फ्रॉडेड दिस पर्टिकुलर बैंक, एंड अदर बैंक्स आर वेरी केयरफुल दैट ओके वी डोंट वांट टू गिव एनी लोन टू दीज पर्टिकुलर एंटिटीज़। सो इससे आपका एनपीए लेवल कम हो रहा है। दिस इज़ अगेन गवर्नेंस इन दी बैंकिंग सेक्टर जो जिससे शुरू हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर बात हुई कि कोई अपॉर्चुनिटी वॉज नॉट गिवन, एंड इसीलिए हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। दैट्स इट। काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर था। लेट्स कम टू हिंदू। आई विल कवर हिंदू इन 5-7 मिनट्स। मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूंगा। HC एडमिट्स रिव्यू प्लीट फॉर मेतई बॉडी ऑन ST। एक बार पढ़ सकते हो कि बेसिकली वो जो सिंगल जज ने कहा था कि मेतई इसको आपको ST स्टेटस मिल जाएगा, एंड 4 वीक में बोला था मणिपुर गवर्नमेंट को कि इसको इम्प्लीमेंट करो। हाई कोर्ट ने उसको अब रिव्यू पिटिशन जो है इसकी एक्सेप्ट कर लिया। अब रिव्यू पिटिशन के अंदर आप जो डिसीजन कोर्ट लेता है उसको रिव्यू करता है। तो यू हैव द डिसीजन, देन यू हैव रिव्यू पिटिशन, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्यूरेटिव पिटिशंस, ठीक है। इनके बारे में भी अगर आपको बाद में टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो। देन डायरेक्टली कम टू कौन से आर्टिकल्स, डायरेक्टली कम टू द आर्टिकल्स। एक ठीक ठाक आर्टिकल है, राइजिंग इंडिया इन वर्ल्ड्स डांस स्टेप्स विद द US। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली आपको शायद से पता ना हो, और अच्छी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। एक कि हमारी इकोनॉमी आज की, इट टुक 63 years for our economy to reach $1 trillion, then 7 years to reach $2 trillion, then 3 years to $3 trillion, and by 2047 we are expected to reach $25 trillion। इकोनॉमी ऐसे की स्टार्टिंग के लिए, इंडियन इकोनॉमी के आंसर की स्टार्टिंग के लिए अच्छा पॉइंट है, अच्छा स्टार्टिंग है। तो अगेन सम कोटेशन टाइप आप लिख सकते हो इसको। दूसरी चीज़, अनदर थिंग, इन 1700 इंडिया अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ ग्लोबल GDP, making it the biggest economy, and by 1991 it was just 1% of world GDP। तो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, और अब हम 4 से 5% ऑफ GDP पे हैं। and therefore US needs Indian market desperately, and India needs capital market, America's capital market and technology, military and non-military both। तो ये इंडिया और उसके रिलेशनशिप के ऊपर है। देन इसी के अंदर लास्ट पैराग्राफ जो है, लास्ट इसी कॉलम के अंदर लास्ट पैराग्राफ, what is scarcely appreciated is even mere listing of a project on प्रगति। ये प्रगति क्या है? Proactive governance and timely implementation of the monthly review of every state, union and stakeholder by the prime minister। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका टाइमलाइन बढ़ तो नहीं रहा उसका, वो अपने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इसके ऊपर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये गुड गवर्नेंस का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रगति, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका गवर्नेंस के केस के अंदर भी, और इसको आप एसए के अंदर या एथिक्स के अंदर भी डाल सकते हो। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ प्रगति डैशबोर्ड जो यूज़ किया जाता है। देन बाकी आप पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सेफ्टी फर्स्ट, छोटा आर्टिकल, सेफ्टी फर्स्ट, इंडियाज़ रेगुलेटर मस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। तो दिस इज़ बेसिकली वही मैं आपको बता रहा था कि एथाइलिन ग्लाइकोल और एथाइलिन ग्लाइकोल आर बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की जगह आप ये दो यूज़ कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। दिस हैज़ बीन प्रूवन बाय दी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC ने ऑलरेडी बता दिया कि ये चीज़ें आ रही हैं, और ये आपके आई ड्रॉप्स के अंदर भी आनी शुरू हो गई है, ये आपके कफ सिरप्स के अंदर भी आनी शुरू हो गई, आपके एनेस्थेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी आनी शुरू हो गई है। सो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड that India is facing, especially because it's the pharmacy of global south। Then ठीक है, हाँ, ओपिनियन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, अ समिट विद सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर वो हम बात कर रहे हैं कि पेरिस के अंदर आज की डेट में हम मीट कर रहे हैं दिस न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस को फाइनेंस कैसे करने वाले उसके लिए है, और यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसिंग इस चीज़ के नहीं है। यू हैव दिस UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट गोल्स एंड बायोडाइवर्सिटी की गोल्स, सबके लिए पैसा चाहिए आपको।
and the hard truth is that only 204 we need somewhere around $4 trillion every year, जिसमें से $2 trillion चाहिए हमें for Paris agreements and $2 trillion for UN SDGs. But the hard truth is that only $204 billion of official development assistance came last year. So basically हमें 10% पैसा मिल रहा है जो हमें चाहिए, ठीक है. एंड मेजर इशू हमने बताया था कि मेजर पोल्यूटर्स कौन सा. मेजर पोल्यूटर्स इज द 12 मेजर पोल्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर पोल्यूटिंग 50% ऑफ उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है 50% है, ठीक है. देन 3 कंपोनेंट्स ऑफ द नेक्स्ट पार्ट में 3 कंपोनेंट्स वो आप पढ़ सकते हो. और इस बार क्या होने वाला है, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक होने वाला है. यार रिमेंबर जीएसटी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जीएसटी होगा जिसमें ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर आप बताओगे कि क्या क्या इश्यूज़ जो हैं हमारे तक जितने भी हमने प्लान एक्शन लिए हैं वो कितने रिजॉल्व हुए हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं पिछले 5-7 सालों में जो भी हमने एक्शन लिए हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, एंड आर वी क्लोजर टू अचीविंग दैट 1.5 डिग्री या 2 डिग्री और नॉट. तो वो ग्लोबल स्टॉक टेक का होगा, डिस्कशन होगा. तो ये आर्टिकल आप पढ़ लो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर दिस. एक आर्टिकल जो आपको पढ़ना है आज, बट आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इज़ फोटॉन्स ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम 2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात है. और दिस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक. तो इसको हम पढ़ेंगे. इस पहले आर्टिकल को पढ़ लेना. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दिस बिफोर टीचिंग यू दिस, बिकॉज मुझे भी थोड़े वीडियोज़ देखने पड़ेंगे इसके लिए. बट दिस सीम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर साइंस एंड टेक. So please do read this particular article. We'll discuss this first thing. We'll discuss this tomorrow. Then we'll start some the other articles. Okay. So with this, I will wrap up today's class, folks. It has been a long class. I wish you a happy yoga day. आज आप योगा ज़रूर try करना, ठीक है. And we will meet tomorrow at 5 AM. ठीक है. चलो. Shivam, I'll connect to you in next 5 minutes. Okay. Bye, folks.